फर्स्ट थिंग, क्राइटेरिया बेस्ड सॉल्विंग, लेस देन और लेस देन इक्वल टू, दोनों में डिफरेंस होता है. दैट इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. बोथ आर डिफरेंट. सो इफ स्कोर लेस देन 50 वाला 43 लोग है, तो लेस देन वाले का इसका आंसर हम लोग को पता है, बट दिस वन इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड. ओके, 2 और मोर क्राइटेरिया है तो फोकस ऑन हु आर एक्सक्लूडेड है ना, दिस शुड बी द फोकस. इफ 3 और मोर क्राइटेरिया है तो एक्सक्लूडेड को कैटेगराइज, कि टॉप वाला है या बॉटम वाला है, कैटेगराइज एंड अंडरस्टैंड ओवरलैप, है ना. तो लेट्स से इफ आई एम सेइंग क्राइटेरिया नंबर 1 की टॉप 30 लोगों को हटा दो, एक्सक्लूड. क्राइटेरिया नंबर 2 इज टॉप 36 लोगों को हटा दो. क्राइटेरिया नंबर 3 इज बॉटम 5 को हटा दो. And total is, let's say 60 students are there. So how many will be left? आंसर क्या होगा? तो इफ यू सी 60 में से टॉप 30 गया, टॉप 36 भी गया, तो दोनों में ओवरलैप है, तो आई कैन जस्ट से कि टॉप 36 पीपल आर गॉन एंड माइनस 5 बॉटम 5, तो टोटल मिला के बचेगा कितना? 19. नॉट 9, 19 बचेगा. क्लियर प्रत्युष? तो दैट इज व्हाट वी डिस्कस्ड. Complex pie chart में while reading understand the data, each and every data point you have to understand what is the data all about. expenditure है या फिर revenue है, कौन कौन से different components है, everything है ना. If there are more than one pie chart, understand what is the first pie chart, second pie chart, third pie chart. Okay, and then once you are done with understanding the data, if you have done it well, then you will understand relationship between these data points. Okay, what is the relationship, and probably write it down. ठीक है, so that is what we discussed. Now let's start solving everyone. तो एक काम करते हैं, I'll share this sheet. Where is it? I'll share here as well as WhatsApp ग्रुप में भी शेयर कर दे everyone. Yes or no? Okay, WhatsApp group में भी I'm sharing so that it will be easy for you guys. Although this is the same sheet which is given in the class ना, तो you can refer to that sheet also. हार्ड कॉपी आपके पास में है ही. Those of you who were not present in the last class, don't worry, focus on the solving, you know, how we are solving those questions today. Then and understand the solution, then that should be good enough for today. हाँ. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सब कोई. चलिए पहला वाला स्टार्ट करते हैं. Practice set 1 everyone. So practice set 1 is given that table A provides data about age of children in a school. For the age given in the first one we have already solved, so this is what I am starting with. Second gives the number of children not exceeding that age. Okay. Then for example first entry indicate there are 9 children age 4 or less. ठीक है, समझ में आ रहा है. B and C provide data on the height and weight. तो इस हाइट से छोटे कितने लोग हैं, है ना, सेम ग्रुप. Assuming that older child will always be taller and weighs more than a younger child, answer the following question. So this is similar to what we have solved in the class में, जो practice set में किया था हम लोगों ने class sheet में. Now we have to solve the questions. ठीक है, थोड़ा सा डेटा ऊपर नीचे करने के लिए what I need to do is, चलो ठीक है ऊपर नीचे आएंगे. तो लिखा among the children older than 6. ठीक है, older than 6 means greater than 6 everyone, but not exceeding
12, लेस देन और इक्वल टू 12, ठीक है। तो एज इज greater than or equal to 6 but less than or equal to 12. How many weigh more than 38 kg? So we have more than means 3 criteria there. तो older than 6 मतलब exclude किसको करना है? Exclude करना है older than 6 मतलब we have to exclude less than 6 वाले सबको less than or equal to 6 वाले को exclude करना है. Now we have data about less than only, है ना? Not exceeding that. So not exceeding is less than or equal to. तो 6 से लेस देन और इक्वल टू 6 हमने याद है 22. These 22 will be excluded. ठीक है सब कोई? तो लेस देन और इक्वल टू 6 वाले एक्सक्लूड करने हम लोग. दीज आर ऑब्वियसली बॉटम वाले लोग हैं, छोटे छोटे बच्चे. फिर नॉट एक्सीडिंग 12. ओके, नॉट एक्सीडिंग 12. नॉट एक्सीडिंग 12 वाले कौन कितने लोग? नॉट एक्सीडिंग 12 मतलब तो 77 पीपल आर लेस देन इक्वल टू 12. तो टॉप के हम लोग के पास में टोटल डेटा हम लोग मान अज्यूम कर लेते हैं कि 100 ही है ना. तो 77, तो 23 टॉप 23 हट जाएंगे जो ग्रेटर देन 12 वाले हैं. Now we are asked among these how many weigh more than 38 kg. Out of these only, ना, how many weigh more than 38. So this is something which is tricky. रीजन में हम लोग के पास 55 स्टूडेंट बढ़े, इनमें से भी ओवरलैप कितने मीन्स 22 नीचे वाले गए, 23 ऊपर वाले गए, इसमें से भी ओवरलैप कितने का. तो वी आर फोकसिंग ऑन ओवरलैप रादर देन दी एक्चुअल वैल्यू. तो 38 से हम लोग को जानना है ज़्यादा वाले कितने. अमॉन्ग देम हाउ मेनी आर मोर देन 38 kg. सो हाउ मेनी आर लेस देन 38 kg? 38 kg से लेस देन वाले 33. तो दीज आर गॉन. लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, ओके. तो लेस देन और इक्वल टू 38 के जी वाले कितने हैं? ओ सॉरी, आई फॉरगॉट नंबर. 33. दीज आर ऑल्सो बॉटम कीपिंग. सबको एवरीवन यहाँ तक क्लियर है? तीनों कंडीशंस, एनी डाउट? सो व्हाट वी डोंट वांट इज कि 100 में से बॉटम के 22 चले जाएंगे, टॉप के 23 चल जाएंगे, बॉटम के 33 और इस 22 में ओवरलैप है तो हम लोग एडिशनल 11 लिख लेते हैं. तो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी 22, 40, 56. Answer will be 44, which is option C. किसी को anyone doubt? इशिता, रिमेंबर हम लोगों ने क्लास में क्या किया था कि अगर वी हैव मोर देन वन मींस क्राइटेरियन तो व्हाट वी डू इज लोग सारे क्राइटेरिया को एक साथ लिखते हैं और उसमें देखते हैं कि एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं ना, और उन सब वो बॉटम वाला है या टॉप वाला है. ठीक है. तो ओल्डर देन 6 चाहिए. ओल्डर देन 6 चाहिए मतलब हम लोग को किसको हटाना पड़ेगा? ये एक्सक्लूडेड वाले. ओल्डर देन 6 चाहिए तो लेस देन इक्वल टू 6 वाले को हटाना पड़ेगा. ठीक है. नॉट एक्सीडिंग 12 चाहिए मतलब 12 से बड़े वाले को हटाना पड़ेगा. वेज मोर देन 38 kg मतलब 38 और उससे छोटे वाले को हटाना पड़ेगा. 38 इक्वल टू होना चाहिए. when they are removing all the less than 6 वाले बच्चे, there are 22 such kids who are small kids ना. बॉटम अगर हम लोग ऑर्डर बना दे टॉप से मतलब हाइट वाइज या एज वाइज तो ये टॉप के बॉटम के 22 चले जाएंगे. अगर 12 से बड़े वाले बच्चों को उड़ाएंगे तो 23 टॉप के बच्चे चले जाएंगे. 38 या उससे छोटे वाले को उड़ाएंगे तो 33 बॉटम के लोग जाएंगे.
तो ओवरऑल इन दोनों को मिला के बॉटम के 33 लोग जा रहे हैं, टॉप के 23 लोग जा रहे हैं, तो हम यानी वी आर लेफ्ट विद दिस 44। इशिता अभी क्लियर है? एनीवन एल्स, एनी डाउट? रामानंद, सृष्टि, शिब्रांशु, एनीवन? चलिए, हाउ मेनी एज किड्स मोर देन एज 10 years आर टॉलर देन 150 centimeters and do not weigh more than 48? Again, more than 10 years, more than 10 years सब कोई, तो we have again more than one criteria ना, तो more than 10 years exclude किसको करेंगे? लेस देन और इक्वल टू 10 वाले को। टॉलर देन 180 सेंटीमीटर किसको एक्सक्लूड करेंगे? 150 या इससे छोटे वाले को। डू नॉट वे मोर देन 48 kg, मतलब एक्सक्लूड किससे करेंगे? 48 kg से ज़्यादा वाले। तो 10 से छोटे वाले कितने हैं? 150 से छोटे वाले कितने हैं? सब निकाल के आते हैं हम लोग। 10 साल से छोटे वाले हैं 160, 150 से छोटे वाले हैं 75, 50, 75। 48 से छोटे वाले कितने हैं? 48 से बड़े वाले कितने हैं? 48 से छोटे वाले 91 है, तो बड़े वाले 9 हो जाएंगे। लेस देन और इक्वल टू 48 है, तो 9 विल बी मोर देन 48 kg। दीज आर बॉटम वाले लोग, these are also bottom, these are all top। ठीक है, तो व्हाट इज द कैलकुलेशन? 100 माइनस, अब इफेक्टिवली बॉटम 75 को माइनस करना है एंड टॉप 9, तो आंसर इज 60। So if you understood first one, second one is directly we can, and that's why I'm doing it fast first. First one में आराम से टाइम लिया था। करेक्ट प्रत्युष? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज 9 और लेस? हम लोग को 9 और लेस चाहिए, मतलब एक्सक्लूड किसको करना है? ग्रेटर देन 9 को एक्सक्लूड करना है। whose height does not exceed 130, 135 से लेस देन इक्वल टू, तो एक्सक्लूड किसको करना है? ग्रेटर देन 135 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग 9 से छोटे कितने लोग, 9 से ग्रेट बड़े लोग कितने? 52, 48 छोटे तो 52 बड़े वाले, एंड हाइट कितना है? 135, 135 से बड़े वाले कितने हैं? 55। तो ये 55 टॉप के लोग, 9 का 52 टॉप के लोग। तो इफेक्टिवली हम लोग टॉप के 55 लोगों को हटा रहे हैं, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज 45। ठीक है ना, इंटरेस्टिंगली दो क्राइटेरिया है, बट दोनों के दोनों टॉप वाले को हटा रहा है, तो इट्स ओके है ना। गुड प्रत्युष। तो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, then the clarity, with clarity you can solve fast। बट मेन थिंग जो हम लोगों ने उस क्लास में भी डिस्कस किया था कि अंडरस्टैंडिंग द डेटा एंड जो है उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को समझना जरूरी है। किसी को एनीवन अभी भी डाउट इन एनी पार्ट सेट 2? अमीशा, भास्कर, हर्षिता, भव्या, मोहित, एनीवन? निखिल, नीलम, शिवानी, शारिक, शुभम, किसी को डाउट तो नहीं है? शेखा? ओके, सृष्टि, वेरी गुड डाउट है ना। सृष्टि इज आस्किंग हाउ डू वी नो विच इज टॉप एंड विच इज बॉटम? ठीक है, अब दिस इज समथिंग विच आई एम डिसाइडिंग, है ना। टॉप बड़ा वैल्यू मतलब टॉप मान लो, छोटा वैल्यू मतलब बॉटम मान लो। कैन वी डू दैट? है ना। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ किड्स लेस 9 और लेस? बहुत छोटे बच्चे चाहिए। तो आई एम सेइंग कि अगर बड़ा नंबर को हम लोग टॉप मान रहे हैं,
तो छोटे बच्चे चाहिए तो एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं? टॉप वालों को एक्सक्लूड कर रहे हैं। कैन वी से दैट सृष्टि? रिमेंबर, वी आर फोकसिंग ऑन किसको एक्सक्लूड कर रहे हैं रादर देन किसको इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़े बच्चे हैं, बड़ा नंबर है तो टॉप हो गया। तो साइन देखो, साइन ग्रेटर वाले के लिए टॉप रहेगा, लेस देन और इक्वल टू वाले के लिए, लेस देन वाले के लिए बॉटम रहेगा। हर जगह देख लो, सेम थिंग विल बी देयर। तो एक नंबर से कम वाला है मतलब उस नंबर से छोटा वाला है, मतलब दे आर बॉटम साइड में, है ना। एक किसी नंबर से बड़ा वाला है मतलब वो उस नंबर से बड़े वाले सारे लोग, उससे बड़े वाले सारे मतलब टॉप के सारे लोग हैं। क्लियर? ठीक है सृष्टि, सृष्टि ओके चलो देखिए, दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब नाउ लेट्स सी, अब जल्दी जल्दी छत्ती छत्ती सबको ही मेरे को आप सब लोग भी बताएंगे कि कैसे कैसे आंसर करना है, क्या क्या आंसर होगा। ओके ठीक है, सबको ही स्टार्ट करते हैं ना। यहाँ पे हम लोग ये 12 और 37 kg है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 एवरीवन, चलिए फिर से पहले रीड कर लेते हैं। फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिटेल्स ऑफ हाइट वेट एंड एज ऑफ ऑल 150 स्टूडेंट इन द स्कूल। Assume an older student is taller and weighs more than a younger student. That's something which we already know. Number of students who weigh age at least 12 years. ठीक है, एटलीस्ट 12 ईयर्स मतलब 12 या उससे ज़्यादा वाला चाहिए। हम लोगों को हटाना किसको है? 12 से कम वाला। ठीक है, फिर वेज 37 और मोर, 37 और मोर वालों को रखना है, मतलब 37 से लेस वालों को हटाना है। अब सृष्टि बताओ, ये दोनों बॉटम होंगे या टॉप होंगे सॉल्व करने से पहले? लेस देन 12 ईयर्स वाला, लेस देन 37 वेट केजी है। दीज आर बॉटम और टॉप वन। छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे, 12 से छोटे, 37 से छोटे, है ना। तो पिद्दी पिद्दी बच्चे ये बॉटम वाले। गुड, नाइस। तो दैट इज व्हाट, है ना, जो वही मैं समझा रहा था ना। तो 12 ईयर से छोटे वाले कितने लोग हैं? 63। 37 से कम वाले कितने? 101 बॉटम। इन लोगों को में से किसी को नहीं देना है, हम लोग के पास 150 लोग हैं। 150 में से बॉटम 63 बोलो, बॉटम 101 बोलो, टोटल बॉटम 101 चला जाएगा, बचेगा 49। आंसर इज नन ऑफ दीज। सबको एक क्लियर? एनीवन एनी डाउट? ठीक है ना सबको, एनीवन, किसी को डाउट तो नहीं? तो व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन, एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं? देखो, आई हैव thought of many ways to solve this question. Among these all means तरीके में एक्सक्लूड करने वाला तरीका इज मोस्ट सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व एग्जाम में। अदरवाइज इफ यू रिमेंबर, मैंने क्लास में कुछ एक ग्राफ करके भी बताया था, बार ग्राफ बना के ऊपर वाला को हटाओ, नीचे वाले को हटाओ, वो भी कर सकते हो, बट अगेन दैट विल बी टाइम टेकिंग, है ना। बट हम लोग इसको समझने में भी ईजी है और करने में भी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी चिल्ड्रन विद हाइट 150 और लेस, ठीक है, एंड वेज 40 और मोर, है ना। तो हम लोगों को जो चाहिए कि क्या है, हाइट 150, मोर देन 150 वाले, ओह नहीं नहीं सॉरी, क्योंकि 37 लेस वाला, ठीक है याद है। हाँ, तो हम लोग को चाहिए हाइट 150 और लेस, ठीक है। 150 और लेस मतलब 150 से ज़्यादा हाइट वालों को हटा देते हैं। कितने 150 से ज़्यादा हाइट वाले? 53 लोग हैं। ये टॉप के लोग हैं या बॉटम के लोग हैं? बताओ भाई।
वेज 40 और मोर, तो लेस देन 40 केजी वाले। हाँ, आप सब समझ गए, वेरी शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड। 40 केजी से कम वाले लोग को हटा दो, 82 लोगों को हटा दिया। तो ये टॉप वाले, लेस वाले, ये बॉटम वाले, दोनों ऊपर नीचे से हट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बचेंगे कितना? 40 केजी से कम कितने हैं? लेस देन 40 केजी 82। ठीक है, नॉट लेस देन है। ओ हो, तुमने किसी ने मेरे को रोका ही नहीं, पहले वाला क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। सर पहला क्वेश्चन तो वही होगा ना, उसमें भी नॉट लेस देन था। तो मैंने ऊपर में भी ये देखा नहीं। ओफो, पहला क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, सॉरी गाइस। वही मेरे को लगा कि ये कैसे मिला है। ओहो, शाबाश। ठीक है, तो कोई बताया नहीं यार, मैंने गड़बड़ करा वैसे, नॉट वाला भूल गया हूँ। चलो सॉरी गाइस, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 भी करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट 12 केजी वाला ना, हम लोग को एटलीस्ट 12 चाहिए, मतलब एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं? 12 या उससे छोटा वाला। एज नॉट लेस देन 12। ओहो, एज नॉट लेस देन 12 का मतलब क्या हुआ? कौन बताएगा? लेट्स से एज नॉट लेस देन 12, इस स्टेटमेंट का मतलब नंबर नहीं चाहिए मेरे को। नॉट लेस देन 12 मतलब मोर देन और इक्वल, मोर देन और इक्वल टू भी चलेगा, है ना? ठीक है, तो अब एक काम करते, इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं हर जगह इसकी जगह ग्रेटर देन लिख लेता हूँ। मोर देन तो मोर देन है, वेट नॉट लेस देन 25, मतलब 25 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये भी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ग्रेटर देन से इक्वल टू से, सब कोई? दिस इज हाउ आई कैन रिप्रेजेंट इट। अब ठीक है सब कोई? ओके, तो 12 से लेस वाले लोग कितने हैं? तो 12 से ज्यादा वाले कितने हैं? 63। लेस देन वाले कितने हो जाएंगे? 87, 150 है ना टोटल। ओके, वेज 37 और मोर, 37 और मोर मतलब 37 से कम वालों को उठाता है। 37 से कम वाले कितने लोग हैं? ग्रेटर वाले 101 है, ठीक है। लेस देन वाले कितने? 49, एंड दीज आर बॉटम। Anyways, answer will still remain the same, but the calculation and everything should be the correct. The answer is none of these only, but तो greater than के अलावा equal to भी होगा आदित्य, है ना? That is something which we have critically means understood, है ना? Everyone ठीक है, फर्स्ट वाला अभी। ओके, चलिए। हाउ मेनी चिल्ड्रन विद 150 और लेस? हम लोग को हाइट चाहिए 150 और लेस, तो ग्रेटर देन 150 सेंटीमीटर वालों को हटा देते हैं, ठीक है। वेज 40 केजी और मोर मतलब लेस देन 40 केजी वाले को हटा देते हैं। ओके, तो अब 150 से ज़्यादा वाले तो हम लोग सिंपली निकाल लेंगे, 53 है। दीज आर टॉप के लोग, बड़े बड़े लोग, बच्चे। 40 केजी या उससे कम वालों को हटाना है। 40 से केजी से कम वाले कितने? ग्रेटर देन इक्वल टू 40 केजी वाले 52 है। लेस देन वाले कितने हो जाएंगे? 150 माइनस 82 विच इज 68। दीज आर बॉटम, ठीक है। 60 कौन सा वाला पार्ट? एक बार बताओ पिन पॉइंटेड करके, सो दैट आई अंडरस्टैंड कि कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। मतलब ये 40 केजी से कम वाला कैसे निकला वो? यस, और एनीथिंग एल्स? 150 से कम वाला कैसे निकला? ओके, तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग बात कर रहे थे कि पहले तो इसकी ये जो है इन्होंने ना, हम लोग अभी तक लेस देन इक्वल टू जानते थे, ग्रेटर देन इक्वल टू जानते थे, ग्रेटर देन जानते थे, बट इन लोगों ने नॉट वॉट लगा के हम लोग को वाट लगा दिए।
तो पहले तो हम लोग को इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दिस पार्ट को। नॉट लेस देन का मतलब क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ नॉट लेस देन? नॉट लेस देन मतलब उससे कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा हो जाएगा चलेगा, इक्वल भी चलेगा। तो दिस इज नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आई विल नॉट, ए इज नॉट लेस देन को भूल जाओ, आई विल जस्ट राइटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू, विच वी अंडरस्टैंड। ठीक है। मोर देन वाला भी हम लोग समझते हैं, ये ग्रेटर देन। नॉट लेस देन वाला भी, ये इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू। ये तो सबको ये ठीक है सबसे पहले। तो दिस इज समथिंग विच वी वांटेड फर्स्ट से पहले, है ना, ताकि हम लोग को बार बार इसको नॉट लेस देन और इन सब के झंझट मारी में नहीं फंसने का। सृष्टि, इज इट क्लियर? यस, नो? ठीक है। Yes. नेक्स्ट इज हाउ मेनी चिल्ड्रन विद हाइट 150 और लेस। 150 और लेस वाले को हम लोग को चाहिए, छोटी हाइट वाले लोग चाहिए। एक्सक्लूड किसको करना है? रिमेंबर, फिर से भूलना नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन लोग क्या चाहिए, हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, क्या नहीं चाहिए। हम लोग को बड़े बच्चे नहीं चाहिए, उनको हकाल देते हैं। तो मतलब 150 और लेस चलेगा, मतलब 150 से ज़्यादा वाला नहीं चलेगा। 150 से ज़्यादा वाले कितने लोग हैं? 53। सिंस दीज आर टॉलर बॉयज, तो ग्रेटर वाला वैल्यू होगा। ठीक है। कमिंग टू 40 और मोर केजी वाला चलेगा, मतलब लेस देन 40 वाला नहीं चलेगा ना। दिस डेटा इज अबाउट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40 केजी। तो लेस देन वाला इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा, विच इज 68। दीज आर स्मॉलर किड्स। अभी ठीक है? यस, नो? Yes. अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 121। दिस विल गिव अस आंसर 29। ठीक है। तो कभी हम लोग को ये इंफॉर्मेशन भी अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। इसको अच्छे से पढ़ लिए, अब हम लोग बाकी इसको एक बार कन्वर्ट कर लिए, बाकी बार बार नोट नोट लेसन नहीं समझेंगे। एक बार लिख दिया, उसको यूज़ करते जाएंगे, है ना। हाउ द स्टूडेंट विद एज 10 और मोर हैव, 10 और मोर वाला चाहिए, मतलब लेस देन 10 ईयर्स नहीं चाहिए। हैव अ हाइट लेस देन और इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, लेस देन और इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, मतलब ग्रेटर देन वाला हम लोग को नहीं चाहिए। वेज नॉट लेस देन 34 केजी। नॉट लेस देन 34 केजी का मतलब क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 34 केजी, मतलब हम लोग को 34 से कम वाला नहीं चाहिए। तो दीज आर एक्सक्लूडेड। 10 साल से छोटा बच्चा कितना है? 10 साल से छोटा बच्चा है 48 बॉटम। 150 से बड़ा बच्चा कितना है? 53 टॉप। 34 केजी से छोटा कितना बच्चा है? 39 बॉटम। तो वही 150 में से बॉटम 48, टॉप के 53, आंसर इज 49। ठीक है। एक बार समझ लिए, उसके बाद में तो फटाफट फटाफट मैकेनिकल प्रोसेस होना चाहिए, है ना। बॉटम में जो बड़ा वैल्यू है और टॉप में जो बड़ा वैल्यू है उसको हटा दो। हाउ मेनी स्टूडेंट विद एज लेस देन 11। लेस देन 11 है, मतलब हम लोग को लेस देन 11 चाहिए, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 11 वाले को हटा दो। सही, हाँ, ग्रेटर। ठीक है। हाइट एटमोस्ट 140, एटमोस्ट मतलब लेस देन और इक्वल टू 140। ठीक है, तो ग्रेटर देन 140 वाले को अगेन हटा दो। वेट ऑफ एटलीस्ट 37, 37 से छोटे वाले वेट वाले को हटा दो। ओके। सो अगेन 11 से छोटे वाले बच्चे, अब ये लिखा एज लेस देन 11, है ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 11 वाले हम लोग के पास में बच्चे 87 है, टॉप पे हट गए। 140 से बड़ा हाइट वाले 91 हो गए, ये भी टॉप के है। वेट ऑफ एटलीस्ट 37 केजी, मतलब हम लोग को 37 से कम वाले को हटाना। 37 से कम वाले बच्चे कितने हैं? 101, तो टॉप वाले ये 49 बॉटम।
तो 150 minus 91 minus 49, answer is 10. C. Okay. तो व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन इज एक्सक्लूडिंग. एक्सक्लूड करने से बहुत सिंपल फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगा, नहीं तो दिमाग लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन करने में, सोचने समझने में. एंड आई थिंक आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर, जितना एग्जाम में आपको सोचना नहीं होता है, दिमाग नहीं लगाना, कैलकुलेशन करना इज नॉट दिमाग लगाना. दिमाग लगाना इज सोचना सोल्यूशन के बारे में. तो जितना आप कम सोचेंगे उतना फास्ट करेंगे. ओके इशिता, कौन से में इशू है? तो मेरे को बताओ कि किसी ने 90 स्कोर किया, 90 से ऊपर वाले 15 लोग हैं, 90 से ऊपर स्कोर करने वाले, वो टॉप के होंगे या बॉटम के होंगे? 11 साल से बड़े बच्चे टॉप के हैं या बॉटम के बच्चे हैं? मोर देन 11 वाले बच्चे टॉप के या बॉटम के? 37 से कम एज, सॉरी वेट वाले बच्चे टॉप के या बॉटम के? दैट्स इट. तो आप तो जानते हो इशू कहाँ पे है. ठीक है. तो ये तो जानते. अब इसमें हम लोगों ने 87 और 91 में 91 क्यों लिया? बिकॉज टॉप के 87 को निकालो और 91 को निकालो, अल्टीमेटली टॉप के 91 लोग को हटा रहे हो ना. बात तो ये हुई. Listen, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वेट ऑफ अ स्टूडेंट विद हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर्स. ओह दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. 160 सेंटीमीटर्स वाले का जो है हाइट कितना? 160 सेंटीमीटर वाले बच्चे जो है, 160 से ज्यादा वाले कितने बच्चे हैं? 22 लोग. ठीक है. तो 160 सेंटीमीटर वाले बच्चे का रैंक कितना होगा? कैन आई से ऊपर से 23rd रैंक होगा? यस और नो, एनीवन, एनी डाउट? 23rd 24th ऐसा रैंक होगा? 23rd ही होगा सब कोई. 160 से ऊपर 22 लोग हैं, तो 160 वाला कितना लोग होगा, उसका रैंक कितना होगा? 23rd रैंक. यस नो, रैंक समझते हैं ना सब कोई? क्लियर सब कोई? है ना. अब लिखा हुआ है उसका वेट कितना होगा. अब हम लोग को पता करना है 23rd वाले का वेट कितना होगा ना. तो हम लोग देखते हैं, इधर आते हैं कि 52 से ज्यादा वाले कितने बच्चे, ग्रेटर देन इक्वल टू 52 वाले 11 बच्चे. ठीक है. 49 या उससे ज्यादा वाले बच्चे कितने? 24 बच्चे. तो देर आर 49, सॉरी 49 या उससे ज्यादा वाले बच्चे कितने हैं? 24. तो हम लोग का जो ये बंदा है वो इसी रेंज में आ रहा है. यस और नो? इसी लॉट में आएगा. तो उसका वेट 49 और 52 के बीच में है. तो ग्रेटर देन 49, ग्रेटर देन इक्वल टू 49 और लेस देन 50. सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से आई रिपीट. कोई पर्सन है जिसका हाइट 160 है, तो व्हाट विल बी हिज और हर रैंक, है ना. तो 160 से ज़्यादा वाले 22 लोग हैं, तो 160 वाला तो नेचुरल 23rd रैंक है. ठीक है. तो वो टॉप के 23 में. ठीक है, मान लेते. अब उसका हम लोग को पता करना है कि वेट क्या होगा. तो मैंने देखा कि शुरू के टॉप के 11 लोग हैं, उनका वेट 52 या उससे ज़्यादा है. ठीक है. तो हम लोग का पर्सन तो इससे छोटा साइज में, मतलब 52 से उसका कम है. बट टॉप के 24 लोगों का वेट 49 या उससे ज़्यादा है, मतलब हम लोग का पर्सन इसी रेंज में आ रहा है. तो 49 या उस, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 49 एंड लेस देन 52, दिस इज द रेंज. एवरीवन अंडरस्टूड? यस नो? तो दिस इज इंटरेस्टिंग, है ना. दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन. तो अमंग द ऑप्शन देयर इज ओनली वन पॉसिबल, 49.
नहीं समझ में आया निखिल? ओके, तो चलिए ठीक है, एक काम करते हैं। सबसे पहले पार्ट वन, इज दिस क्लियर? ऊपर वाला पार्ट, 123rd रैंक वाला पार्ट क्लियर है या नहीं है? किसी को डाउट एनीवन? शाबाश, तो आधा चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या किए, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब हम लोग वेट वाले में आते हैं। हम लोग मेरिट लिस्ट देख रहे हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट में देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखना शुरू किए, वेट वाले में है ना, ठीक है। तो देखा 52 से ऊपर 11 लोग का नाम था, 11 लोग हैं, उनका 52 है, उससे ऊपर था। तो हम लोग का पर्सन इधर आ रहा है कि इस रेंज में है या नहीं, इधर है कि नहीं है? नहीं है। कैन वी से दैट? यस और नो? निखिल? हाँ वही समझा रहे रामानंद, वही वही समझा रहे हैं, है ना। कैन वी से दैट टॉप के, हम लोग यहाँ से देखने जा रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे मेरिट लिस्ट बना हुआ, उसमें देखा है कि 52 kg है ना, उससे ऊपर वाले, उसके इक्वल टू ऊपर वाले 11 लोग हैं। उसमें हम लोग का ये पर्सन है जो है मिस्टर एक्स या जो मिस एक्स, जेंडर न्यूट्रल रख देते हैं, एक्स। सो दिस एक्स इज हियर और नॉट? एक्स नहीं, अच्छा नाम ए रख देते हैं, इसका नाम ए। ए जो है, ए इन 11 लोगों में आएगा या नहीं आएगा? बताओ रामानंद। उसका रैंक 23rd है, तो ए तो नहीं आना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये इधर नहीं आएगा, ठीक है। अब ये बोल रहा है 49 लोग हैं, उनका वेट जो है 24 या उससे ज़्यादा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 13 लोग 49 और 52 के बीच में होंगे, है ना। तो हम लोग का पर्सन इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन दोनों के बीच में? उसका रैंक 23rd है, तो भाई वो इस रेंज में आ रहा है, इधर कहीं पे बीच में भटक रहा है। तो दो कंडीशन है भाई, कि 52 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 52 से ज़्यादा होता तो फर्स्ट लिस्ट में आ जाता, और 49 से कम नहीं हो सकता। तो ही इज समवेयर हियर, यहाँ पे। तो 49 से उसका वेट ज़्यादा होना चाहिए और 52 से कम होना चाहिए। अभी क्लियर रामानंद? तो हम लोग का ए इज हियर, यस दैट इज, है ना। ओके निखिल, सृष्टि, और कौन कौन बचे? विदिशा, अंडरस्टूड? गिव मी अ थम्स अप इफ अंडरस्टूड। शेखा, चलिए। तो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग को, देखिए यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो इसमें कुछ जैसे 1 2 3 4 में हम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, इसमें क्या दिमाग लगाया? 1 2 3 4 में क्या नंबर देख रहे थे, कैलकुलेशन कर, यहाँ पे दिमाग लगाना था कि भाई 23rd है कौन, फिर इसमें से कहाँ पे आएगा। तो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ हम लोगों का, ठीक है। तो ये दोनों एक तीन सेट्स आई थिंक, आई होप आपने सॉल्व कर लिए होंगे अच्छे से। चलिए, अब बिफोर गोइंग इनटू दिस, कौन सा सेट पहले करें, रंगीन वाला पहले करें कि ये पाई चार्ट 1 2 वाला पहले करें, बताओ। पाई चार्ट 1 वाला पहले करें, ठीक है। चलिए, तो सबको ही, अब आई वांट एवरीवन टू अंडरस्टैंड कि हम लोगों का कॉम्प्लेक्स पाई चार्ट में करना क्या है। व्हाइल रीडिंग अंडरस्टैंड द डेटा, चाहे वो टेक्स्ट में लिखा हो या पाई चार्ट में हो, एंड देन रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो दैट इज व्हाट आई विल डू, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो हम लोग कर चुके थे ना उस समय।
एनीवेज पहले इसको करते हैं ना. ट्रेडिशनली पेन्स हैव बीन ऑफ टू टाइप्स, इंक एंड बॉल पेन. ठीक है. हाउएवर वो सिक्स वाला मेरे को लास्ट में याद दिलाना, वो करेंगे. पहले ये जो हम लोगों ने नहीं किए पूरे सेट्स वो कर लेते हैं. However, in the last few years, a new type of pen named thin nib has gained acceptance. ठीक है. In 2013, the ratio of sales of three types of pen in the given order in India was 7:12:1. Okay. So ink, ball and thin. ठीक है. 7:1 ये है. The total sales of, okay, तो यहाँ पे हम लोग को लगा सेल्स वॉल्यूम. सबको ही हर शब्दों को अच्छे से समझना है. सेल्स वॉल्यूम 7:12:1. इन तीनों का सम करो. 7 + 12 + 1 इज कितना हुआ? 20. तो 20x is equal to 100%. So what I can say is this is 35%, this is 60%, and this is just 5%. ऐसा बोल सकते हैं एवरीवन, टोटल मार्केट सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से. नेक्स्ट लिखा है द टोटल सेल्स वॉल्यूम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ पेन्स पुट टुगेदर वाज 100 करोड़. ठीक है. तो हम लोग पता कर सकते हैं किसका कितना है. And that of sales value of 3 types of pens put together is 150 crores. तो वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं भाई. वॉल्यूम ये कितना? 35 करोड़ इसका बिका, 60 करोड़ इतना इसका बिका, एंड 5 करोड़ इसका बिका. सब कोई वॉल्यूम इतना है. बट टोटल वैल्यू, वैल्यू और वॉल्यूम में कौन फर्क होता है? एनीवन हु नोज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड वॉल्यूम? जब तक मीनवाइल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टोटल वैल्यू इज 150. बताओ भाई. क्वांटिटी एंड कॉस्ट. एग्जैक्टली. वैल्यू का मतलब भाई पैसे है ना. कितना कॉस्ट है, या कॉस्ट से ज़्यादा सेल्स कितने का ना. सेल्स वैल्यू मतलब कितने में बिका. तो 150 करोड़ का सम टोटल पेन्स बिका है. टोटल पेन्स बिके 100 करोड़, मतलब ऑन एन एवरेज 1.5 रुपीज पर पेन हुआ होगा. Pie chart 1 shows the distribution of sales volume of ballpoint pen of 7 brands. तो दिस इज बॉल पॉइंट पेन ओनली एवरीवन. बॉल पॉइंट वाला मतलब ये. ठीक है. पाई चार्ट 2 शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ बॉल पॉइंट पेन ऑफ 7 ब्रांड्स. ये वॉल्यूम है, ये वैल्यू है. तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेता हूँ, ये वॉल्यूम, और दोनों कौन सा है? बॉल पॉइंट. इसका टोटल तो हम लोग को पता है कितना, 60 करोड़ है. एनीवन एनी डाउट यहाँ तक? सबको एक. तो हम लोगों को ऊपर में इंफॉर्मेशन इंक बॉल थिन दिया है, बट पाई चार्ट में बॉल पॉइंट वाला ही है. ओके. तो दिस इज एवरीवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट. और उसको हम लोग लिखते जा रहे हैं, उसको हम लोग उसमें पाई चार्ट में अटैच करते जा रहे हैं. इट इज नोन दैट ओनली अफोरमेंशन्ड ब्रांड्स ऑफ बॉल पॉइंट वर इन द मार्केट इन 2000 इन इंडिया इन 2013. मतलब ये 6-7 ही ब्रांड है और कोई एक्स्ट्रा नहीं है. एंड ईच ऑफ दीज ब्रांड सोल्ड ऑल द बॉल पॉइंट एट सेम प्राइस. सब ने अलग सेम प्राइस में दिया है. ठीक है. इन इंडिया विच ब्रांड्स, ओके, तो सब ने हम लोग को बोला है कि क्या किया है, ईच ऑफ दीज ब्रांड सोल्ड इट्स बॉल पॉइंट एट द सेम प्राइस. मतलब सब ने अपना अपना प्राइस जो है सेम रखा है. ठीक है. इन इंडिया विच ब्रांड सोल्ड बॉल पॉइंट एट मैक्सिमम प्राइस इन द गिवन ईयर. ओके. तो एक पेन सबसे महंगा किसने बेचा है? एनीवन, कोई बता पाएगा सबसे महंगा पेन किसका है? सी. वेट इज अगेन, सी लुक्स गुड. नहीं, बट सी इज गलत जवाब. एफ सर. हाँ, एफ इज करेक्ट आंसर.
ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ सबको, एक समझाता हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे देख के बताएंगे ना। सब कोई एवरीवन पे अटेंशन, जिसको नहीं समझ में आया डोंट वरी ना। पर पेन का एक किसी ब्रांड का लेते हैं, ए का पर पेन का कितना उसको पैसा मिला होगा, प्राइस होगा। तो ए ने कितना हो गया, 20% ऑफ जितना भी पेन, जितना भी सबने मिलके जितना वैल्यू किया है, मैं इसको वैल्यू लिख देता हूँ, बॉल पॉइंट वाला ना, बॉल का वैल्यू, पूरा इंडस्ट्री में से 20% इसको पैसा मिला है, रेवेन्यू मिला है, और इंडस्ट्री का टोटल 33% इसने वॉल्यूम किया है। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, कि एक पेन का कितना प्राइस होगा। सबको यस और नो, एनीवन एनी डाउट इन दैट, कि ए ने जो बेचा है पेन, उसमें एक पेन का प्राइस का आंसर यही होगा। हम लोग को बॉल वैल्यू का नंबर चाहिए और बॉल वॉल्यूम का नंबर चाहिए। वॉल्यूम हम लोग के पास में वैल्यू नहीं है, चलेगा, बट फॉर्मूला यही होगा। किसी को डाउट एनीवन इसमें? यस, नो, एनीवन? कि जितना भी टोटल इंडस्ट्री ने वैल्यू किया, जितना भी टोटल बिका, उसमें से 20% हम लोग को इसको पैसा मिल रहा है और 30% इसने वॉल्यूम की। यस, नो, एनीवन? किसी को डाउट है? बोलो भाई। विदिशा, तरुण, सुमित, एनीवन? ठीक, बी के लिए देखते हैं 20% ऑफ बॉल पॉइंट का वैल्यू एंड 10% ऑफ बॉल पॉइंट का वॉल्यूम। एवरीवन सी 23% ऑफ बॉल पॉइंट का वैल्यू डिवाइड बाय 17% ऑफ वॉल्यूम, डी 8% ऑफ बॉल पॉइंट का वैल्यू डिवाइड बाय 13% ऑफ उसका वॉल्यूम, ई 10% का वैल्यू एंड 20% का वॉल्यूम। भाई बहुत लिखवा दिया इसने, ठीक है फिर भी चलेगा। 19%, कितने ब्रांड से, 1 2 3 6 ही है, इसने 7 बोला था, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इतना ही मान लेंगे, जितना दे रखा है उतना ही करना है हम लोग को। एंड 7% ऑफ वॉल्यूम। सबको ही एवरीवन? अब इसको कंपेयर करना है एवरीवन। अब कैन आई रिमूव द सेकेंड पार्ट सब में से कंपेयर करने के लिए? इसको हटा दे, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है राइट हैंड साइड वाला, वो सब में कॉमन है। तो a is 20/33, b is 20/10, c is 23/17, d is 8/13, e is 10/20 and f is 19/7। सबसे बड़ा वैल्यू किसका है? कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है? f is the answer। तो जब भी वॉल्यूम वर्सेस वैल्यू हम लोग पर यूनिट का हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं ग्राफ में, ए को हम लोग कंपैरिजन कर लो, ए बाय लेफ्ट राइट हैंड साइड बाय लेफ्ट हैंड साइड, 20/33, 20/10, सबसे बड़ा वैल्यू एफ का आ रहा है, एफ इज द आंसर। ओके चल, क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं इसके। इन इंडिया टोटल सेल्स वॉल्यूम ऑफ बॉल पॉइंट पेन ऑफ ब्रांड ई एंड हाफ ऑफ बी पुट टुगेदर वाज
what percentage of total sales volume of ballpoint pens in the given year? Okay, sales volume of what is E? E का सेल्स वॉल्यूम है 20, हाफ ऑफ बी का हाफ कितना है 5, तो ये मिला के कितना हो जाएगा 25। इजी पीजी, सब कोई 2 वाला हो गया, करने का जरूरत नहीं कुछ। क्वेश्चन नंबर 3, if a pie chart of total sales volume of 3 times of pens put together in India in the given year is drawn, तो हम लोगों ने पहले जो कैलकुलेशन कर रखा है, what will be angle in degree subtended by sales volume of Chinese ink pens in the chart if Chinese ink pen constitutes 15% of total sales of ink pen? तो सबसे पहले चाइनीज जो है इंक पेन, चाइनीज इंक पेन कितना है, is 15% of total ink pens which is 35%। सब कोई 35 करोड़, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 15 से मल्टीप्लाई करो तो 5.25 करोड़। तो चाइनीज इंक पेन कितना है 5.25 करोड़। सब कोई यस नो? इंक पेन जो है 35 करोड़ बिका है, जो हम लोगों ने ऊपर में यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखा है, क्योंकि 35% है, टोटल 100 करोड़ था पेन बिका था, इंक पेन 35 करोड़ बिका, उसमें से चाइनीज जो है इंक पेन 15% है, तो इतना। कैन वी से टोटल जितना भी पेन बिका है उसका 5.25% भी है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5.25%। यस नो एवरीवन? पाई चार्ट का सेंट्रल एंगल कितना होता है, बीच में एंगल कितना होता है टोटल, कोई भी सर्कल के बीच का एंगल कितना होता है, जैसे इस वाले का एंगल कितना होगा बीच में 360, तो कैन वी कैन से 100% जो होता है वो 360 डिग्री करता है, तो 5.25 कितना करेगा, यूनिटरी मेथड से कोई जानते हैं, 360/100 इंटू 5.25। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा 3.6 से कर देते हैं 18 एंड 18 प्लस 0.9, तो 18.9 डिग्रीज, सॉरी, तो ये कैलकुलेशन करेंगे हम लोग को 18.9 डिग्रीज मिलेगा। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज व्हाट वी वर सपोज टू डू इन क्वेश्चन नंबर 3। तो मेन थिंग जो है हम लोग को सबको ये पहला वाला क्वेश्चन है वो अच्छे से याद रखना है, दिस वन, कि हम लोग जब भी वॉल्यूम मीन्स पर यूनिट हम लोग प्राइस निकाल रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर एक आइटम का कितना वैल्यू में प्रोपोर्शन है, मतलब कंट्रीब्यूशन है, और कितना वॉल्यूम है, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट निकल जाएगा। तो अब रादर देन डूइंग इट फॉर ईच फाइंडिंग द वैल्यू, हम लोग रेशियो को कंपेयर कर लेंगे तब भी काम चल जाएगा। अगर हम लोग को यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू दे रखा होता यहाँ वाला, तब भी कैलकुलेशन करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, यू कैन जस्ट कंपेयर दीज नंबर्स, है ना? सबको सब लॉजिस्टिकल समझ में आया ना, फर्स्ट वाले का एंड थर्ड वाले का? सेकंड तो बहुत इजी था। एनीवन एनी डाउट? तान्या, शिब्रांशु, श्रुति, शरिक, साहिल, एनीवन? चलिए ठीक। Now we'll move to the third set. Okay, the third set is actually कैट का क्वेश्चन है ना, कैट का क्वेश्चन है ये। चलिए तो हम लोग, हाँ बोलो, कोई बोल रहा है? नहीं, ठीक। तो दिस मल्टी लेयर्ड पाई चार्ट शोज sales of LED television sets for a big retail electronics outlet during
2016 एंड 17, ठीक है, 16-17 का डेटा दे रहा है। ओके, आउटर लेयर शोज द मंथली सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड, मंथली सेल्स ये दे रहा है। ओके, समझ में आ रहा है, ये जनवरी का, फरवरी का, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है, विद ईच लेबल शोइंग मंथ्स फॉलोड बाय सेल्स फिगर, ठीक है, समझ में आ रहा है। फॉर सम मंथ्स सेल्स फिगर्स आर नॉट गिवन, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। मिडिल लेयर शोज क्वार्टर वाइज एग्रीगेट सेल्स, क्वार्टर वाइज मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना, 3-3 महीने का। इन सम केसेस एग्रीगेट क्वार्टर वाइज सेल्स आर ऑल्सो नॉट गिवन, ठीक है, चल देखेंगे। द इनर मोस्ट लेयर शोज दी एनुअल सेल्स, इनर मोस्ट जो है हम लोग को एनुअल सेल्स दे रहा है। It shows the sales figure during 3 months of the second quarter, है ना, May June of 2016, सॉरी, inner rail shows the annual sales, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग को दे रखा है 2016 का, ये 2017 का क्वार्टर भी दे रखा है। ओके, तो हम लोग जैसे यहाँ पे Q1 का हम लोग को नहीं पता, बट Q2 का पता है, Q3 का नहीं पता, Q4 का पता है, एंड सो ऑन। ओके, Q1 का तो निकाल सकते हैं, 80, 60 और 100 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 240। हम जस्ट राइटिंग, है ना, कि हम लोग को समझ में आ रहा है। अब सबको ये अगला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वेट करते हैं। इट इज नोन दैट सेल्स फिगर ड्यूरिंग 3 months ऑफ द सेकेंड क्वार्टर, अप्रैल, मई, जून ऑफ 2016 फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अप्रैल, मई, जून, सब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानता है? यस, नो? 3 नंबर अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, 3 नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो हम लोग उन 3 नंबर्स को लिख सकते हैं a माइनस डी, ए एन ए प्लस डी। ऐसा क्यों करते हैं सब कोई? जैसे हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एन, ऐसे होता है। बट हम लोग 3 नंबर अगर एपी में होते तो ऐसे लेते हैं। इन दोनों का डिफरेंस डी है, इधर में डी ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा, इसमें डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी आ जाएगा। ऐसा करने का जो है लॉजिक ये है कि तीनों को ऐड करो क्या आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, व्हाट डू वी गेट? टोटल कितना आएगा? बोलो, व्हाट इज सम? 3। तो टोटल अगर हम लोग को पता है तो बीच वाला नंबर तो मिल जाएगा। बीच वाला नंबर कैसे मिलेगा? 1/3। तो कैन वी फाइंड मे का वैल्यू? व्हाट इज मे का वैल्यू? बताओ भाई। तो टोटल 150 है, उसका 1/3, 50 इधर आ गया। जून का वैल्यू बताओ जल्दी से, तुरंत प्रभाव से। अप्रैल, मई, जून का सम इज 150। अप्रैल 40, मई 50, जून कितना हो जाएगा? सम तीनों का 150 है ना? वेरी गुड। किसी को एनीवन डाउट इस वाले में? कैसे हम लोगों ने एकदम मस्त आराम से इसको निकाल लिया। जस्ट यहाँ पे लिखा मैंने, कहीं पे लेट फेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ छोटा सा लॉजिक लगाया, हो गया। किसी को डाउट एनीवन इस पार्ट में? एनीवन? निधि, मोहित, हर्षिता, भव्या, ब्यूटी, एक्सप्लेन वंस अगेन। ओके, देखो, हम लोग 3 नंबर को, किसी भी 3 नंबर को एपी में लेते हैं। एपी जानता है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 3, 5, 7, 9 ऐसे, है ना, 4, 10, 16, 22, सेम नंबर ऐड होता जाता है ना। तो हम लोग कोई भी अगर 3 नंबर एपी में है, उसको हम लोग जनरली एपी को ऐसे लिख सकते हैं कि सेम नंबर यहाँ पे डी ऐड हो रहा है, इसमें भी डी ऐड हो रहा है, इसमें भी डी ऐड हो रहा है ना। तो
जनरली थंब रूल क्या होता है कि अगर 3 नंबर एपी में है, तो आई राइट दीज नंबर्स एज दिस। सब कोई, क्योंकि इसमें पहले वाले में डी ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा, दूसरे वाले में डी ऐड करेंगे तो ए प्लस डी आ जाएगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। रामानंद, सृष्टि, यस, नो, कैन वी से दैट? ओके। अब ऐसा क्यों लेते हैं? लॉजिक इज because if I sum these numbers, what is sum of these numbers? Sum of these numbers is 3a. What does that mean? अगर हम लोग को सम पता है तो मिडिल वैल्यू भी पता है। 3 नंबर एपी में है ना? हम लोग को नंबर नहीं पता है, उनका सम हम लोग को दे रखा है इज 18। सम 3a है तो मिडिल वैल्यू a हो जाएगा। तो सम 18 है तो मिडिल वैल्यू विल नेसेसरली हैज टू बी 6। गॉट इट? यस, नो? ठीक है, ओके। तो ये हम लोग जो है तो ये बेसिक लॉजिक है। हम लोग ऑब्वियसली मोर प्रैक्टिस करेंगे, आपका एपी का क्लास होगा, एपीजीपी का, वो बहुत डिटेल में होगा, बट दिस इज सिंपल लॉजिक विच वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने सोचा कि इसको यूज़ कर लेते हैं, है ना? बट ये हम लोग को वैसे भी पता होना चाहिए, है ना? हम लोग यहाँ पे एपीजीपी लगा नहीं रहे, बट सिंपल लॉजिक। तो इफ दिस इज 150, इन तीनों नंबर का सम 150 है तो मिडिल वैल्यू 50 हो जाएगा। मिडिल वैल्यू पता है, पहला नंबर पता है, तीनों का सम पता है, तो तीसरा वैल्यू भी पता है। ओके, क्लियर? भाई बोलो अभी, सबको? यस, नो? ओके, चलिए। किसी को डाउट, एनीवन? चलो, तो आप लोग जवाब नहीं देते, यस नो भी थोड़ा बता दो। आयुषी, शुद्ध, आदित्य, हमेशा समझ में आया ना सबको ही? मतलब हाँ ना, कुछ हाँ, थोड़ा ऐसा मोटिवेशन रहेगा, मेरे को भी समझ में आ गया। वेरी ओके। अब सबको ही समझ गया है, तो अगला चीज आप खुद करिएगा। देखिए, चलिए एवरीवन, आई रीड नेक्स्ट स्टेटमेंट। एज डू 3 monthly sales figures in fourth quarter, October, November, December of that year. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन तीनों का सम दे रखा है, अक्टूबर दे रखा है। तो आई वांट नवंबर और दिसंबर का वैल्यू। सब कोई निकाल के बताओ मेरे को चैट में। आई वांट द आंसर। सब कोई? आदित्य ने बताया, बाकी लोग? प्रत्युष, गुड। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का वैल्यू सब कोई? भव्या, ब्यूटी, सृष्टि, तरुण भाग गया, तरुण कहाँ गया? खुशी, गुड। शिवरांशु, गुड। तो इतना आपने कर लिया, 120, 140, तो आपका ये सेट बन गया बॉस। डन। बाकी अब कुछ ज़्यादा करने का नहीं है। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलिए, तो सब कोई, लेट्स स्टार्ट। What percentage increase in sales in 2017 compared to sales in 2016? 16 का सेल्स है 140, 140 से कितना हो गया है? दिसंबर का सेल्स कितना है?
500 है, ये 150, ये 170, ये हो जाएगा 180। परसेंटेज चेंज निकालना आता है हम लोग को। चेंज इज 40 डिवाइड बाय 140, दिस इज 2/7। 1/7 होता है 14.28, 2/7 हो जाएगा 28.57। आंसर इज ऑप्शन 1। कैसा लगा क्वेश्चन नंबर 7? इजी सबको ही? है ना? देखो कैट में ऐसा क्वेश्चन आता है एकदम लड्डू, है ना? कितना जल्दी हम लोगों ने ये तो अब मेंटली सॉल्व कर सकते थे ऊपर वो 50 और 120 वाला, एक बार जानते हैं तो उसके बाद में तो सिंपल ये कैलकुलेशन करना है। इन विच क्वार्टर ऑफ 2017 was the percentage increase in sales from same quarter of 2016 the highest? 16 17 में किस में सबसे हाईएस्ट हुआ है परसेंटेज चेंज? तो अब थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा। Q2 में देखते हैं। 150 इधर है, इधर कितना है, इधर ऐड कर देते हैं। ये हो गया 140, 200। कितने का इंक्रीज है? 50 का इंक्रीज है। 150 से डिवाइड कर, 1/3। Q3, Q3 का सम कर लेते हैं। 50, ये हो जाएगा 130, 250 है यहाँ पे। इधर का Q3 इज 220, 70 डिवाइड बाय 250, 7/25। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 28% आएगा, 133% ज़्यादा होता है। Q1 240 है, इधर Q1 कितना है? तीनों को जोड़ो भाई, 220 और 380, 140 डिवाइड बाय 240। ये तो 50% से भी ज़्यादा लग रहा है, कट हो गया थोड़ा तो। 7/12। Q4 यहाँ 500 है, यहाँ पे 360 है। 140 डिवाइड बाय 360, विच इज़ द हाइएस्ट? Q1, बिकॉज 100% से भी ज़्यादा का इंक्रीज है, सॉरी 50% से भी ज़्यादा का इंक्रीज है। तो बेसिक परसेंटेज कैलकुलेशन करना है हम लोग को। 8th वाला एवरीवन क्लियर? ठीक है, सबका वैल्यू ऐड करके हम लोग को परसेंटेज चेंज देखना किसमें सबसे ज़्यादा है। एनीवन इन डाउट? क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ड्यूरिंग विच क्वार्टर वाज द परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम प्रीवियस क्वार्टर वाज हाईएस्ट? ओके, Q2 में देखो 380 से 200 हो गया है, 180 का नुकसान हो गया है 380 से। Q4 ऑफ 2017, Q4 ऑफ 2017 या तो इंक्रीज हुआ है, ये क्या बकलोल है, ये क्रॉस कर। Q2 90 का डिक्रीज ओवर 240। Q1 380, 360 से 380 हो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, झूठ बोल रहा है। तो 90 डिवाइड बाय 240, 180 बाय 380, ये दिस इज ऑलमोस्ट 50%। सो आंसर इज ऑप्शन 1। डिक्रीज सबसे ज्यादा किसमें है? Q1 में। क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग विच मंथ वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स वाज प्रीवियस मंथ वाज हाईएस्ट? अक्टूबर 2016। अक्टूबर में 55 से 100 हो गया, वेरी गुड। 45 का इंक्रीज ओवर 55, ऑलमोस्ट 100%। मार्च 2017, मार्च 2017 की तरह इधर 100 से 160 हो गया, तो 60 का इंक्रीज ओवर 100। ये थोड़ा कम है, 1 वाला ज़्यादा लगा है। मार्च ऑफ 2016, मार्च ऑफ 2016 कितना लिखा हुआ है? 60 से ये भी 100 हो रहा है, मतलब 40 का इंक्रीज ओवर 60। यहाँ पे थोड़ा 66% से थोड़ा ज़्यादा है। अभी तक नंबर 1 वाला अक्टूबर वाला ही सबसे ज़्यादा है। अक्टूबर 2017 70 से 150, 100% से भी ज़्यादा का चेंज है। तो हम लोग का आंसर होगा भाई ऑप्शन। एवरीवन अंडरस्टूड?
The key thing which we had to do was to just use that AP वेपी वाला थिंग जो लिखा था, एंड उसके बाद में मक्खन टाइप से क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 हो गया, सिंपल परसेंटेज कैलकुलेशन। एवरीवन क्लियर? एनीवन एनी डाउट? हाँ आदित्य वो बताते हैं। तो क्वेश्चन 6 में तो हम लोग को लिखा था कि द रेशियो ऑफ मनी स्पेंड बाय ऑन फूड टू मनी स्पेंड बाय रैन ऑन रेंट वाज 4:5। क्या लगा फूड को नैन्सी ने कितना स्पेंड किया है? 25% ऑफ नैन्सी, एंड रियान ने रेंट पे कितना किया? 30% ऑफ रियान। दिस इज इक्वल टू 4:5। n बाय r इज इक्वल टू, अगर सॉल्व करेंगे ये 5/6 आ जाएगा, विच इज 24:25। तो आई कैन टेक इट एज 25x and 4x and 25x everyone. So these are their incomes. Their combined savings is this. Find the money spent by Ryan on entertainment. उनका combined saving कितना है? उनका combined saving कितना है? 27% of Nancy and 13% of Ryan. This is equal to 194600। आदित्य इसको सॉल्व करेंगे। 24 into 7 is 168, 16 carry, 48, 14 plus 16 is 648 plus 325 x 0 दोनों कॉमन है, उधर भेज देते हैं। इसको ऐड करेंगे 973x is equal to this much। कैलकुलेट करेंगे, ये कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, x is equal to 20,000। So Ryan's income is 5 lakh। Money spent by Ryan on entertainment. Entertainment 18% of 5 lakhs is 90,000। That's it। तो मैंने यहाँ तक करा रखा था। एक मिनट रुको रुको, क्या बोल रहे हो तुम? हेलो, why didn't we directly calculate 18% of Ryan's income? 18% of Ryan income, हाँ किया 18% of Ryan income। 3.6 कहाँ से आया? पिछले क्वेश्चन से। नो नो नो, वी कैन नॉट यूज, एक दूसरे क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते। सर लेकिन इनकम तो आ ही रहा है ना वो चार्ट क्वेश्चन का। को 5 से यूज कर रहे हो तुम ना? हाँ सर हाँ। नहीं नहीं नहीं, देखिए, अंडरस्टैंड, दिस इज द कॉमन इंफॉर्मेशन, है ना? ये कॉमन इंफॉर्मेशन है और ये इंडिविजुअल क्वेश्चंस है। तो हम लोग इंडिविजुअल क्वेश्चंस को जो है उसमें एक दूसरे का इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते, है ना? हम लोग केवल कॉमन क्वेश्चन, कॉमन इंफॉर्मेशन ही यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इंफॉर्मेशन 6 में यूज नहीं कर सकते, इवन 4 का इंफॉर्मेशन 5 में यूज नहीं कर सकते। गॉट इट? ठीक है, या सो दैट इज ऑल, है ना? एनीवन एनी डाउट? स्टिल एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, एनीवन? ठीक है।